कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश्ड बाय ए.ओ. ह्यूम। अब ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर थे। 1884 में इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन बनाया, लेकिन दादा भाई नेहरू ने कहा कि अरे भाई चेंज कीजिए। तो जब फर्स्ट सेशन हुआ इंडियन नेशनल यूनियन का, तो इसे क्या बनाया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस किया गया। किसके उस पर, दादा भाई नेहरू के कहने पर। ठीक है। द फर्स्ट मीटिंग ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर पूना में रखा गया था, लेकिन वो शिफ्ट किया गया कहाँ, बॉम्बे में, क्योंकि कॉलरा का आउटब्रेक हो गया था। Its objective was to provide platform for educated Indians to discuss political and social issues, seek a share in governance। मतलब ये लड़ाई वड़ाई का कोई वो नहीं था, बस एक मतलब एजुकेटेड इंडियन ताकि मतलब थोड़ा बहुत अपना वो कर सकें, शेयर वेयर कर सकें ब्रिटिशर्स के साथ, ये मामला था। लेकिन बाद में क्या जज्बात बदल गया। Alan Octavian Hume was a retired Scottish civil servant और ornithologist and political reformer। ठीक है। ये एक थ्योरी चली उस समय, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इसमें ये कहा गया कि लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि आप बनाइए, ताकि जो इंडियंस हैं वो वायलेंट ना हो जाएं। ठीक है। सजेस्टेड ह्यूम विथ ए tacit approval of Lord Dufferin helped found INC to provide a constitutional outlet for the growing discontent among educated Indians, thereby preventing a more violent and widespread rebellion against British rule. Hume initially proposed a union of social reform, but the Indian leaders steered it towards political demands. A.O. ह्यूम जो थे वो पहले जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, इन्होंने बनाया इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में। Surendra Nath Banerjee was a staunch advocate of civil service reforms. Surendra Nath Banerjee civil services and greater Indian representation in administration. His Indian National Association aimed to, अरे एक लोग और थे, आनंद मोहन बोस थे क्या शायद इनके साथ, हाँ ऐसे ही कुछ नाम था, या राधाकांत देव, नहीं राधाकांत देव नहीं थे। While a key figure in early Indian nationalism, he was not a founder of Indian National Congress. He did, however, merge his Indian National Association with Indian National Congress in 1886, marking a significant consolidation of nationalist forces. He presided over Surendra Nath Banerjee ने 1895 और 1902 में मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता की। W.C. बनर्जी, ओमकेश चंद्र बनर्जी was an eminent Indian barrister. He held distinct being the first president of Indian National Congress. Inaugural session in Bombay in 1885. He also presided over 1892 वाला भी session इन्होंने वो किया। His election as president symbolized the intellectual and professional caliber of early Indian nationalist leaders and the inclusive nature of nascent organization. एनी बेसेंट जी, ये आयरिश थियोसोफिस्ट थी, वुमेन राइट एक्टिविस्ट थी। शी माइग्रेटेड टू इंडिया इन 1893 और होम रूल लीग बनाया इन्होंने। मतलब होम रूल लीग का चालू किया इनके साथ, बाल गंगाधर तिलक जी के साथ। ठीक है। शी बिकेम द फर्स्ट, बाल गंगाधर जी लाला लाजपत राय, कन्फ्यूज आगे पढ़ लिया जाएगा। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1970 कलकत्ता सेशन। ठीक है। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सिविल सर्वेंट थे। ठीक है। कौन? A.O. ह्यूम। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो A.O. ह्यूम। ठीक है। विलियम एडम कौन थे? और क्वेश्चन देखा जाए, ब्रिटिश मिशनरी और ओरिएंटलिस्ट थे। हु कंडक्टेड अ सिग्निफिकेंट सर्वे ऑन वर्नाकुलर एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार इन 1830। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। रास बिहारी बोस जी,
a prominent Indian revolutionary leader. He was involved in Delhi conspiracy case in 1912 में, and later went to Japan. मतलब जापान चले गए थे, पकड़ा नहीं था. He played a significant role in establishing Indian Independence League and the first Indian National Army, Ras Bihari Bose, in Southeast Asia during World War II. He represented a more radical and revolutionary stream of the Indian national movement, testing the constitutional method initially pursued by Indian National Congress. Motilal Nehru ji, prominent lawyer, nationalist and father of Jawaharlal Nehru, leading figure of he was a key leader of स्वराज पार्टी. स्वराज पार्टी जब बनी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बना था 1923 में, which aimed to enter legislative council and obstruct British administration from within. He presided over Calcutta session 1928 में, which called for dominion status for India. He was not involved in the founding of Indian National Congress. Where was the Indian National Congress was set up? 1885 में. कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में 28 to 30 दिसंबर 1885. ओके 1886 में कलकत्ता में हुआ. दादा भाई नेहरूजी थे उस समय. उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की इंडियन नेशनल एसोसिएशन मर्ज हुई. 1887 में मद्रास में हुआ. बदरुद्दीन तैयब जी ने बनाया, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट थे. 1888 में फोर्थ हुआ इलाहाबाद में. इसमें क्या हुआ? जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट बने. एओ ह्यूम क्या थे? पहले जनरल सेक्रेटरी थे. एओ और जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन वो थे, प्रेसिडेंट थे. हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव टूक पार्ट इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 72 delegate took part in first session of Indian National Congress held in Bombay in December 1885. The number of delegates grew steadily in subsequent sessions, indicating increased popularity and reach of the Indian National Congress. Second session में 1886 में कितने हुए? 436. थर्ड सेशन में 1887 में 607 delegates हुए. The first conference of Indian National Congress held at Mumbai. कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज 28 दिसंबर 1885 में. पहले पूना में होना था, लेकिन कॉलरा की वजह से गड़बड़ हो गया. कोलकाता में सेकंड सेशन हुआ 1886 में. दादा भाई नेहरूजी अध्यक्षता किए और बहुत से हुए, जैसे जनगण मन पहली बार यहीं गाया गया दिसंबर 1911 में, और एनी बेसेंट ने भी पहली वुमेन प्रेसिडेंट 1917 में कोलकाता में ही हुआ. कोलकाता being the capital of British India until 1911 was a major political and intellectual hub, making it a frequent choice of Indian National Congress sessions. लाहौर में 1929 में हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, मतलब रेजुलेशन लाके दिसंबर 1929 में, सॉरी जनवरी, 31 दिसंबर 1929 में हुआ, और 26 जनवरी को ये बोला गया कि इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा. मुंबई. अब हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? WC बनर्जी जी थे. एओ ह्यूम पहले फाउंडर और पहले जनरल सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. WC बनर्जी जी पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. दादा भाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. 1886 में कलकत्ता को लीड वो किए. 1893 में लाहौर, 1906 में कैलकाटा, फिर और 1906 में ही डिक्लेयर्ड स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट. दादा भाई नेहरूजी की घोषणा थी स्वराज की, सेल्फ गवर्नमेंट की, एज द गोल ऑफ कांग्रेस. ही वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन सजेस्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस. पहले इंडियन नेशनल यूनियन था, तो उसके बाद दादा भाई नेहरूजी ने कहा कि अरे यार बदलो, इंडियन नेशनल कांग्रेस करो. Among who of the following presided over first annual meeting of the Indian National Congress? तो WC बनर्जी ने, ठीक.
ठीक है। एओ ह्यूम फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी थे। दादा भाई नौरोजी ये सेकंड सेशन कलकत्ता वाला वो किए थे, 1906 वाला भी किए थे, 1893 वाला भी किए थे। एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाए थे और 1886 में मर्ज कर दिया कांग्रेस में। डब्ल्यू सी बनर्जी जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब देखते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1888। अच्छा, मतलब 1888 की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है 85 में डब्ल्यू सी बनर्जी थे, 86 में अपने ये थे, क्या कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी थे, 87 में बदरुद्दीन तैयब जी थे मद्रास में, 88 में थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद में। फोर्थ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस held in 1888 at Allahabad was presided by George Miller. He held distinction of the first European president of Indian National Congress. ठीक है। He was close associated with A.O. Hume and sympathetic to Indian aspiration. Scottish merchant थे, ठीक है। Yule's election was a strategic move by Indian National Congress to demonstrate its broad appeal, and so it was not exclusively anti-British, but rather against oppressive British policies. सही है। दादा भाई नौरोजी 1886 कलकत्ता में, सेकेंड वाले में 1893 लाहौर में, 1906 कोलकाता में। और देखिए हिज 1906 प्रेसिडेंसी वॉज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट एज ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ द कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी was also the first Indian to be elected to the British House of Commons 1892 to 1895, representing the Liberal Party। लिबरल पार्टी से जीते थे दादा भाई नौरोजी। डब्ल्यू सी बनर्जी ये इंडियन बैरिस्टर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ही वाज आल्सो प्रिसाइडेड ओवर 1892 में इलाहाबाद वाले सेशन में। वेडरबर्न, डब्ल्यू वेडरबर्न, सर विलियम वेडरबर्न वाज ए रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ ए.ओ. ह्यूम। ये क्या किए थे, ही वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ आईएनसी एंड सर्व एज इट्स प्रेसिडेंट्स ट्वाइस, 1889 में बॉम्बे में और 1910 में वेडरबर्न 2 बार अध्यक्ष भी रहे, 1910 इलाहाबाद में। ही आल्सो प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लंदन, 1889 में शायद बना था ये, and established to promote Indian interest in British. Wedderburn's continued association with Indian National Congress highlighted the support of Indian nationalist cause received from some liberal British individuals. ठीक, the first president of Indian National Congress was W.C. बनर्जी, हम लोग जान रहे हैं। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। इनका जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन था वो मर्ज हुआ 1886 में, और इन्होंने आईएनसी प्रिसाइड किया 1895 में पूना में, 1912 में अहमदाबाद में। डब्ल्यू सी बनर्जी तो पहले थे और ए.ओ. ह्यूम जी पहले जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी एस एन बनर्जी प्रोमिनेंट लीडर, ये 1895 और 1902 में थे। Which of the following statement about the founding of the Indian National Congress is or correct? Indian National Congress was formed in 1885, सही है। First president of Indian National Congress was यूके चंद्रमोहन जी, दोनों सही है। Which of the following was not objective of Indian National Congress as pointed out by W.C. Banerjee in 1885? क्या उनका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था? टू प्रमोट कॉन्टैक्ट एंड फ्रेंडशिप एमंग द प्रोटेक्टर्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ये हमेशा भाई ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एमंग फेलो कंट्रीमैन बाय रिमूविंग द फीलिंग ऑफ कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनल बेसिस, ये भाई कोई भी रहेगा और रहेगा ही रहेगा। टू एक्सप्रेस द व्यू पॉइंट ऑन नेसेसरी सोशल इश्यूज विद ड्यू कंसेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास, सिर्फ एजुकेटेड क्लास नहीं और लोगों का भी।
to determine on which direction and on which basis the work has to be done in the coming year for the इंडियन पब्लिक इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा नहीं था? To express the viewpoint of the on the necessary social issues with due consent of educated class। जब अभी देखिए क्यों, फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक डिमांड, it is known that initially there was a provision or arrangement for not raising social issues from the Congress platform. Based on the point 4, the INC initially decided not to raise social issues from its platform. Therefore, to express the viewpoint on the necessary social issues was not an objective at the beginning। मतलब शुरुआत में ये नहीं था कि सोशल इश्यूज उठाना, ठीक, तो ये नहीं था। ठीक है, to express the viewpoint on the necessary social issues with due consent of the educated class, ये नहीं था। It is known that initially there was a provision or arrangement for not raising social issues for the Congress platform. The early Congress leader predominantly moderate intentionally avoided raising social issues जैसे child marriage, caste reform, ये सब नहीं उठाते थे at their annual session. This was primarily to maintain unity within the nascent organization, as social reform issues were highly divisive and could alienate conservative section of society. They believed that the political reform should take precedence धीरे धीरे and social reform could be addressed through separate organization जैसे Indian Social Conference, which often met concurrently with the Indian National Congress. This distinct is crucial for understanding the early phase of Indian National Congress। मतलब वो नहीं चाहते थे कि कुछ टूट पड़े, तो इस वजह से अलग वो बनाए इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। सही है। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द डिमांड ऑफ द कांग्रेस टू इंक्रीज। अच्छा, शुरुआत में जो था वो क्या नहीं था? टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसका नहीं रहेगा? सबका रहेगा भाई। टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल। सही है। सपरेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी बिल्कुल रहेगा। जब एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग रहेगी तो अच्छे से काम हो पाएगा, नहीं तो एक दूसरे का दोनों मतलब वो करेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, यूनिफिकेशन नहीं भाई। द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडियन ऑफन रिफर्ड टू एज मॉडरेट फेज, रफली 1885 to 1905, was characterized by demands for constitutional reform and greater Indian participation in administration। ठीक, अब देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनल मूवमेंट कांग्रेस डिमांडेड ए ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। It wanted the legislative council to be made more representative, given more power, and introduced in provinces where none existed। Provinces में भी बनाया जाए। It demanded that the Indians be placed in high position in government। Other demands included the separation of the judiciary from executive, the repeal of Arms Act, and freedom of speech and expression। Based on this, the demand was for the separation of executive judiciary, not their unification। Therefore, unification of executive and judiciary was not a demand। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अच्छा, यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस इज अपोजिट of what the moderates demand। The moderate influenced by liberal democratic principle advocated for separation of power, which is cornerstone of a just and democratic society system। Unification could mean concentrating power, which antithetical to their reformist goals। सही है। The General Secretary of Indian National Congress in 1885 was, जनरल सेक्रेटरी की बात हो रही है तो ए ओ ह्यूम थे, पहले जनरल सेक्रेटरी थे। ए ओ ह्यूम वॉज नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट आल्सो सर्व्ड एज इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी in 1885 and continued in
that role for many years. He organized initial meeting and managed the affairs of national organization. ठीक है, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, मतलब ये मतलब कलकत्ता वाले में वो थे। फिरोज शाह मेहता, Firoz Shah Mehta Sir Firoz Shah Mehta was a prominent moderate leader, lawyer and journalist from Bombay. He was a key figure in early Congress, known for his strong advocacy for constitutional reform. He presided Calcutta session in 1890. ठीक है, The Indian National Congress was established during the viceroyalty of Lord Dufferin. इन्होंने ही वो किया था। Indian National Congress was established in 1885. During this period, Lord Dufferin was the Viceroy of India 1884 to 1888. He initially adopted somewhat supportive or at least tolerant stance towards the formation of INC, viewing it as a potential safety valve for growing political discontent. लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक थे, मतलब डफरिन से पहले थे। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। हिज टेन्योर वाज मार्क्ड सम लिबरल रिफॉर्म इंक्लूडिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया गया लॉर्ड रिपन के दौरान 1882 में, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इल्बर्ट बिल 1883 में, विच एम टू अलाउ इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस, मतलब यूरोपियन इंडियन जजेस भी क्या कर सकते थे, सजा दे सकते थे यूरोपियंस को। रिपन वॉज जनरली मोर सिंपैथेटिक टू इंडियन एस्पिरेंट्स देन मेनी अदर वाइसरॉयज। हाउएवर आईएनसी वाज फाउंडेड इमीडिएटली आफ्टर हिज टेन्योर। डफरिन उस समय थे। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दी जाती है कि इन्होंने ही कहा था कि एओहिम को बनाओ, इन्होंने ही कहा था कि क्या, फेमसली डिसमिसिंग इट एज रिप्रेजेंटिंग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन सेकेंड, हिज टेन्योर सॉ ए आउटब्रेक ऑफ प्लेग एंड फैमिन 1894 टू 1899 में। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड में सिग्निफिकेंटली मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। He is known for stating India was conquered by sword and by the sword it shall be held, मतलब तलवार के बल पे ही इंडिया को कैप्चर किया गया था और तलवार के ही बल पे इसको चलाया जा सकता है। ओहो। लॉर्ड लिटन 1876 to 1880, his tenure characterized by highly unpopular and repressive measure। इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया और आर्म्स एक्ट लाया। He also oversaw second Anglo-Afghan वॉर 1878 to 1880 एंग्लो लॉर्ड रिटन ने, और एक फैमिन भी आई थी उड़ीसा रीजन में 1876 to 1878। लिटन्स पॉलिसी फ्यूल्ड सिग्निफिकेंट रिसेंटमेंट among Indians and indirectly contributed to the environment where a unified political platform like in INC became necessary। Who among the following Governor General ridiculed Congress as representing only a microscopic minority of people? तो लॉर्ड डफरिन थे वो। तो उन्होंने कहा था कि ये बहुत छोटे से समूह को ये लीड करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब लॉर्ड कर्जन 1899 to 1905 में थे। उन्होंने कहा क्या कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड माई स्टे इन इंडिया माई प्लान एम इज टू हेल्प इट टू ए पीसफुली डिमिश, मतलब कांग्रेस ख़त्म हो रही है भारत में और मैं इसलिए यहाँ हूँ ताकि ये पीसफुली ख़त्म हो सके। लॉर्ड मिंटो 1905 टू ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात है। मॉर्ले सेक्रेटरी थे, मिंटो क्या थे, ये मतलब वाइसराय थे। विच इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ए पॉलिसी डिजाइन टू डिवाइड नेशनलिस्ट मूवमेंट along common lines. Minto's approach was more about administrative manipulation, creating division rather than direct ridicule of the Indian National Congress representative character. Fact क्या है, succeeded Lord Dufferin, his tenure saw a passing of Indian Council Act of 1892 which introduced indirect election to legislative councils। अरे सॉरी लॉर्ड लैंडसॉन की बात हो रही है, ये इनके बाद आए हैं, मतलब डफरिन के बाद आए हैं, और इन्हीं के उसमें ये इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ।
which introduced indirect elections to Legislative Council. While he generally continued the policy of subtle opposition to the Indian National Congress, he is not specifically known for इसके लिए. Who was the Governor General when the Indian National Congress was formed in 1885? तो लॉर्ड डफरिन, ये हम लोगों ने पढ़ा ही. लॉर्ड, अच्छा देखा जाए, Lord Litingo, Viceroy, 1936 to 1943. His tenure was during the critical period of World War II, the Cripps Mission and the Quit India Movement. क्विट इंडिया मूवमेंट 1936, अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी यही थे, और क्रिप्स मिशन के भी दौरान यही थे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब चालू हुआ तब भी यही थे. लॉर्ड वेलेस्ले, गवर्नर जनरल 1798 से लेके 1805 तक थे, ये गवर्नर जनरल थे. इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वो किया, विच ब्रॉट मेनी इंडियन स्टेट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल. ही एस्टेब्लिश्ड फोर्ट विलियम कॉलेज. लॉर्ड वेलेस्ली's subsidiary alliance system. His tenure was much earlier, at the height of British expansion in India, long before the rise of organized nationalism. डफरिन ये थे 1884 to 1888. Lord Salisbury, Robert Gaston Cecil, third Marquess of Salisbury, served multiple terms as a Prime Minister of UK and a Secretary of State for India at various times. He was never Governor General of India. While a significant figure in British imperial policy, his role was in London, not as head of British administration in India. An important event of Lord Dufferin's tenure as Viceroy was establishment of Indian National Congress. सही है. Establishment of रामकृष्ण मिशन, ये स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में वो किया, in his memory of his गुरु रामकृष्ण परमहंस. मुस्लिम लीग इन ढाका, ये ऑल इंडिया 1906 में बनी थी, और मच आफ्टर द डिफरेंस टेन्योर ढाका में बनी. ठीक है. मुस्लिम लीग वाज फाउंड टू प्रोटेक्ट पॉलिटिकल राइट ऑफ मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में डफरिन के दौरान बनी. ठीक है. द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेंसस, ये किसके दौरान? 1881 में. अच्छा, 1872 में लॉर्ड मायो के उसमें पार्शियल सेंसस वाज कंडक्टेड, लेकिन लॉर्ड रिपन के टेन्योर में 1881 में फर्स्ट कंप्लीट एंड सिंक्रोनस, मतलब उसके बाद हर 10 साल पे होने लगा. सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881 ड्यूरिंग लॉर्ड रिपन्स टेन्योर, हु प्रिसाइडेड डफरिन से पहले थे. The census was a tool for British administration understanding demographic in India, but it was not a significant event during different time. ठीक है. Who had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people? ये लॉर्ड डफरिन ने कहा. रिपन लिबरल पॉलिसी के लिए जाने जाते थे. इनको मतलब इन्होंने ही पहला अच्छे से सेंसस करवाया, वर्नाकुलर एक्ट हटाया, ये सब मामला किया इन्होंने. कर्जन, ये कांग्रेस को टॉटरिंग इट्स फॉल कहा. लॉर्ड वेलेस्ली ही मतलब 1798 to 1805 सब्सिडरी अलायंस, इन्होंने ही वो किया था. Who among the following was not present at the founding session of the Indian National Congress? बताइए, ये कोई क्वेश्चन है? कौन जान रहा है कौन है या नहीं है? लेकिन भाई पूछ लिया है, उसका मन. अभी दादा भाई नेहरूजी कोलकाता सेशन के अध्यक्ष थे, ये प्रेजेंट थे. बॉम्बे में भी जी सुब्रमण्यम अय्यर भाई प्रेजेंट, पता नहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन मान लेते हैं. जस्टिस राणा डे मुंबई में हुआ तो बिल्कुल रहे होंगे. सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी अपना इंडियन एसोसिएशन जो है 1886 में मर्ज किया कोलकाता में, तो ये नहीं थे. सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, बट ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट फाउंडिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस December 1885. He preoccupied with the second session of the Indian National Conference, which was held in 1883, being held at Calcutta. His Indian National Association eventually merged
with INC in 1886. दादा भाई नौरोजी ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो किया, सजेस्ट किया. सुब्रमण्यम अय्यर जी, नेशनलिस्ट फ्रॉम मद्रास, को फाउंडर ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर के सुब्रमण्यम अय्यर जी के को फाउंडर हैं. जस्टिस रानाडे महादेव गोविंद रानाडे जी, ए डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अच्छा देखिए, ही वॉज ए की फिगर ऑफ द मॉडरेट फैक्शन एडवोकेटिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स. ही वॉज ऑल्सो फाउंडर ऑफ इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस विच ऑफन मेट अलॉन्गसाइड द, मतलब इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस क्या करता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस अब सोशल इश्यूज उठा नहीं पाती थी तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस उठाती थी. ठीक है, सूर्यनाथ बनर्जी जी सही है. द सेकेंड, अच्छा तो यही हम लोग ख़त्म करते, बाकी अगले में मिलते हैं. थैंक यू.